Welcome everyone to the another podcast of Kashmir Realtor. Today, episode is extremely important. We're going to talk about clean real estate transactions, every safe investment, which has a behind story of every deal that closed smoothly. There's a law, due diligence, documentation, and compliance. And the person who makes sure our client, company, and our deals stay protected is with me today. Advocate Roman Monib. He's from IMR Law Offices. He's a corporate lawyer, a legal advisor, and a man who handles all our legal due diligence, agreements, and real estate transactions. Roman, welcome to the podcast. Thank you, AB. Thank you for inviting me here. So, Roman, I will just start it very simple. Who is Roman? What is IMR Law Offices? And how are you associated with Kashmiri Realtor? See, first of all, I would like to tell you something about IMR Law Offices. IMR Law Offices Kashmir portrays itself as a full-service law firm specializing in corporate law, basically. I believe corporate law is something that is missing in Kashmir. We have lawyers who handle your disputes. Dispute resolution is there. But before reaching a dispute or before a dispute arises, what do you have? You need a sound legal advisory. You need a sound legal base before entering into any sort of transaction, before entering into any sort of business or taking any business call, the day-to-day business calls that you take. So as a corporate lawyer, I make sure that I usually call myself as a business lawyer. I handle business transactions and I deal with businesses to make sure that the risk is mitigated to the maximum possible extent. And that is what I do. As far as Kashmir Realtors is concerned, I have been working with you since a very long time now. And my job is to make sure that you, as a real estate agent, make sure that the property that you're selling or marketing ultimately, it has a clear title, it is marketable, and ultimately, I believe that you're here to give professional services and to build a credibility ultimately. वन टाइम डील नहीं करनी है आपने, एक बारी का पैसा अंदर नहीं करना आपने एक अपना नाम बनाना है. And I also believe in the same principles. So that is the reason that I am working with you. And I'm Roman, a corporate lawyer by profession with over a decade of experience. Yeah. Okay, so we are here today to talk about real estate, right? That's our main topic. When I was out, I came to Kashmir and you were the first person whom I got in touch with because I have excelled in real estate transactions, but I have a very vague idea about law because all the firms, all the corporates I have worked with, they do have a legal background. So, and that's how they work. And when I came to Kashmir, I saw a big gap where the law or the lawyers who are into real estate, they're not doing it as a full time. They are having a one of its vertical as a real estate. Other than that, they do criminal law, they do anything except the real estate. And when it comes to real estate, they were into mostly sale deeds, rental agreements, or the lease deeds. That's what they used to do. And one of the person I met when I came to Kashmir before you was a guy who was into this particular industry, that's law industry, as a legal industry, wherein I try to understand how you can help me to be a best real estate agent in the market because I need to make sure I am trying to change the demographics of how Kashmir real estate looks like. You can let's ask which are to us as a normal person, or you see the traditional way. What they do is they don't consult a proper lawyer, they don't consult a proper real estate broker, they don't consult a proper CA for any type of real estate transactions. But when we see real estate as it starts from a crore and goes up to hundreds of crores, and that's a big amount, right? And when we see the charge associated to it, it's not that big. क्योंकि अगर हम देखेंगे एक broker 2% का पैसा लेता होगा and a lawyer will charge max to max 0.5 to 1% of the same deal, wherein he makes sure that the whole deal is safe, right? So my question is, and how has Kashmir's real estate landscape changed legally in last few years? Because you are taking the step now. See, I am taking a step in my own capacity.
I'm sure there are a lot of other lawyers who are doing the same, Mhm. providing same sort of services. And this is what we do basically. We help people take a sound legal decision before entering into any sort of transaction. Like I said, before taking any call, business call. So जब बात आती है प्रॉपर्टी की, रियल एस्टेट की, सी लास्ट 5 years में obviously post 2019 a lot of investors, a lot of people locally, they dived into this real estate market because they felt कि ये शायद market up होने वाला है. And obviously, for obvious reasons, people from outside Kashmir also started looking and eyeing Kashmir as a prospect कि यहाँ पे real estate investment करना शायद फायदेमंद हो सकता है because of its, obviously the landscape जो यहाँ का beauty है वगैरह वगैरह. I won't say a lot has changed before because I believe before things could have positively changed for the people in Kashmir as far as real estate market is concerned. Unfortunately, we have certain challenges in Kashmir, which we all know. There are challenges with regards to the political scenario, for example. So there have been situations जहाँ पे momentum build हो ही रहा था कि चीज़ें हाथ से निकल जाती है. But having said that, I believe this is one market, the real estate market, which has tremendous scope in Kashmir. अगर हम कश्मीरी कश्मीर ही सिर्फ देखेंगे, in next, let's say by 2035, at least, this is as per the government statistics, we need at least 3 lakh more housing units in Kashmir. And अगर वो सब भी ना देखा जाए, होटल इंडस्ट्री अगर हॉस्पिटैलिटी अगर देखा जाए, which is also a part of, in some way, part of the real estate market. So ultimately, वहाँ पे भी tremendous एक need की ज़रूरत है. We need hotel rooms in different categories. So this is one market which needs professionalism ultimately, because if you want to gain investor confidence, no investor would dive into something which involves crores of rupees. आप 10 करोड़ रुपए लगा रहे हो, आप 50 करोड़ रुपए लगा रहे हो, आप 2 करोड़ रुपए लगा रहे हो. करोड़ is a big amount. For a middle class person like me, 2 crores is, आपकी पूरी लाइफ की एक जमा पूंजी है, जो अल्टीमेटली आप डालते हो एक प्रॉपर्टी में, सो दैट कहीं पे आपका पैसा जो है वो लगा रहे एंड ये अप्रिशिएट होता रहे. एंड बिफोर मेकिंग दैट डिसीजन, you're ultimately, you have to rely upon a broker or a real estate agent, जो कश्मीरी में हमें यहाँ पे द्राल होते हैं. लाइक यू सेड, द्राल यूजुअली जो है यहाँ के, वो उनका एक पार्ट टाइम एक जॉब है. द्राल इज बेसिकली, अब पार्ट टाइम जॉब पे आप अपनी जिंदगी का पूरा जो जमा पूंजी है या जो आपका हार्ड अर्न मनी है, 50 करोड़ इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट. Right. If you are planning on building a commercial property, it will involve crores of rupees. Ultimately, you're relying upon whom? That particular That part-time. person who has no legal knowledge, who doesn't understand what the title of the property is, ownership कैसे ट्रांसफर होती है, लीगैलिटीज क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स क्या बोलती हैं, वो लैंड टाइप है क्या, बहुत सारी इंट्रिकेसीज है जो अल्टीमेटली एक्सपर्ट ही आपको बता सकता. आई एम नॉट सेइंग दैट दे डोंट नो इट, बट वो बोलते हैं लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग विच अल्टीमेटली लीड्स टू फ्रॉड्स, और मे बी एक बैड इन्वेस्टमेंट हो जाती है. एक इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाता जो भी इन्वेस्टर होता है, बीट समवन हु इज फ्रॉम कश्मीर, और समवन लेट्स से कोई बाहर से है जो यहाँ पे लेना चाहता है या उसकी उम्मीद है कि यहाँ पे लेगा. सो ही वॉन्ट बी एबल टू टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन जो अल्टीमेटली उसका गोल है. बिकॉज why do you purchase a property? You purchase a property in hope that it will appreciate in some time. करोड़ में खरीदी है, 1.5 करोड़ में आगे बेचूंगा. बट अगर वो 50 लाख का उसको अप्रिशिएट हो ही नहीं सकता, या उसको करोड़ की जगह पे ऊपर से करोड़ खर्चा और करना पड़े फॉर परमिशंस और रेस्ट ऑफ द थिंग्स, सो व्हाट इज द पॉइंट? अल्टीमेटली इट बिकम्स अ बैड इन्वेस्टमेंट. सो इन ऑर्डर टू टेक इट इन्फॉर्म्ड डिसीजन, you need guidance, legal guidance, and people like you ultimately who can help and facilitate such people in probably showing properties who have a clear title, who have a marketable title. And if there is not a marketable title or a clear cut एक chain नहीं है उस property की, you have to inform the client. Then it is his decision ultimately to go for it or not go for it. So that is the idea basically, what I call it, and what we, in legal terminology में से legal due diligence बोलते हैं या property due diligence बोलते हैं, जिसमें ultimately we cover a lot of aspects about which we'll probably talk in, Sure. in some time. Okay, before going to the buyer and the seller mindset, I will just love to ask you that you said that the person should have a legal due diligence, right?
But when I came to Kashmir and I was looking to set up a Domino's here in one of the buildings towards the downtown, Sheher Khas. And when I saw, I was recking around the properties and I couldn't find a lot of properties on the market. I saw a lot of big brands, local brands, which are there already. But when I was looking for an MNC who is coming from outside the India as well, and they are setting up their base here in Kashmir as a food chain or any other chains, and I saw a big gap in terms of the permissions. The properties aren't having any permissions. They do have a commercial structure over there. Either they are not very vetted by the government, but they are still there in the market. And with that, I got one very vague question from one of the big heads of that particular industry. जनाब आपके यहाँ तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है मगर ये कमर्शियल परमिशन क्यों नहीं देते हो आप गुंडागर्दी से वो परमिशन लाते हो या आप गुंडागर्दी से वो परमिशंस या मकान बनाते हो या वो कमर्शियल स्ट्रक्चर बनाते हो क्योंकि आपके यहाँ तो कोई परमिशन है नहीं बिकॉज इफ अ big company has to come to Kashmir, they look for compliances. As you said, that a big person coming from outside, there are big industries coming to Kashmir now, but they do have a proper legal due diligence, जो कि Kashmir fail करती. And how can we match these things? Because already मैंने बनाया structure. A structure is there, but I don't have a proper permissions. What can be done there in that terms? Because that is already there in the market. क्योंकि हमारे पास अब भी जो भी inventory आती है, जो भी properties आती है, they don't have a proper legal structure. How a broker or how as a legal attorney you will try to match the gap? See, at the end of the day, it is not, I can't single-handedly do this. I need people like you to, first of all, educate people. See, जो पिछले 50 साल में हो गया या 100 साल में हो, you cannot change that. Yes, you can tell people to get regularized, but at the end of the day, see, I'll give you एक example मैं आपको देता हूँ. यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे या अग्रीमेंट टू सेल के बेसिस पे ट्रांसफर हो चुकी है ए से बी फॉर एग्जांपल एंड अल्टीमेटली जो बी है उसके पास क्लियर कट टाइटल नहीं है, ही डजंट हैव ओनरशिप राइट्स. कुछ चीजें अलॉट हुई हैं जिनमें लीज होल्ड राइट्स जो हैं वो दिए गए हैं लोगों को एंड वो 100 साल से उनके पास लीज होल्ड राइट्स हैं एंड वो फर्दर सेल कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का, परपेचुअल लीज डीड्स कर रहे हैं, मिठाई ले रहे हैं या जो. माई पॉइंट इज दैट जो राइट आपके पास है ही नहीं. पावर ऑफ अटॉर्नी आपको ओनरशिप राइट्स नहीं दे रहा, अग्रीमेंट टू सेल आपको कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स दे रहा है, वो आपको ओनरशिप राइट्स नहीं दे रहा है सच. नाउ द राइट दैट यू डोंट हैव, हाउ कैन यू आगे आप कैसे दे सकते हो वो किसी को. एंड जो खरीदने वाला है उसकी ड्यूटी है ये पूरी चेन समझना कि इसके पास एक क्लियर कट टाइटल है या नहीं है. जो इसके पास नहीं है वो मुझे ये कैसे दे सकता है. ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा जो प्रॉपर्टीज है वो इसी तरीके से ही चलती आ रही है. यहाँ पे बहुत रेयरली सेल डीड्स होती है बिकॉज पीपल इट्स नॉट just about Kashmir but all over India, people have been avoiding stamp duties, registration charges, and ultimately वो indirect means से, unethical means से जो है property जो होती है वो transfer हो ही जाती है. and कहीं ना कहीं तक law भी recognize कर ही लेता था उस चीज़ को. but अभी के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट गाइडलाइंस है, जजमेंट्स है, हमारे पास केस लॉज है जिसमें क्लियरली बताया हुआ है कि पावर ऑफ अटॉर्नी या अग्रीमेंट टू सेल जो है उससे ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रही. दैट डजंट क्रिएट ओनरशिप. यू नीड अ प्रॉपर डीड, स्टैम्प ड्यूटी पेड एंड रजिस्टर्ड एट द सब रजिस्ट्रार ऑफिस, जिससे ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम ए टू बी. नाउ आंसरिंग टू योर क्वेश्चन, व्हाट कैन बी डन. जो नई बिल्डिंग्स है, जो नई कंस्ट्रक्शंस है, जितने भी नए यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स है, शुरू होने से पहले ही एज अ रियल एस्टेट एजेंट और एज देयर रियल एस्टेट एजेंट यू नीड टू टेल देम दैट जो भी स्ट्रक्चरिंग आप करो अल्टीमेटली इट हैज टू बी एज पर लॉ. देयर हैज टू बी अ डॉक्यूमेंट अल्टीमेटली दैट कैन बी रजिस्टर्ड. आपने अभी बताया कोई कॉर्पोरेट अगर बाहर से यहाँ पे आता है, he'll not he'll first go for a legal due diligence, property due diligence, and then take a call because ultimately he's also answerable to the company. Right. जो भी उनका यहाँ पे properties देखते हैं वो offices के लिए या for whatever reasons, he'll go through that process, and when the lawyer or whosoever they appoint, they give them a clear chit, then only they'll move forward. Believe me, as a lawyer, I've dealt with some of these cases. In half of these cases, or maybe more than half of these cases, उनमें क्लियर टाइटल होता ही नहीं. एंड जबकि वो 100 साल से वो प्रॉपर्टी चल रही एंड उस प्रॉपर्टी का एक फेस वैल्यू भी है, मार्केट में एक स्टैंडिंग है उस प्रॉपर्टी की एंड बहुत टाइम से चलती आ रही है, बड़े बड़े शोरूम्स है उसमें. बट अल्टीमेटली जब आप डेप्थ में जाते हो
आपको ये समझ आता है इसके पास टाइटल है ही नहीं, Agree. क्लियर कट टाइटल है ही नहीं, तो वहां पे आप थोड़ा ट्रिकी हो जाता है. बट एज अ रियल एस्टेट एजेंट यू नीड टू इन्फॉर्म दिस क्लियरली टू योर क्लाइंट फर्स्टली. सेकेंडली, जो भी ये कमर्शियल बिल्डिंग्स बना रहे हैं, यू नीड टू टेल देम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट whatever you're making, make sure that you have all the permissions sorted, you have a clear title, because ultimately if you're going to sell it or put it on lease, people that you're eyeing, because ultimately you would want The best. सब्सटैंशियल लोग जिनके पास पैसा हो, जो एक बड़ा नाम हो, वो आएंगे, एंड वो तब तक नहीं आएंगे जब तक आपके पास क्लियर टाइटल होगा. Got it. एंड अल्टीमेटली ये सारा मार्केट जो है ना वो कोलैप्स हो जाता है. Agree. आपके पास टाइटल सही नहीं है, बड़ा जो प्लेयर होगा वो आपके पास नहीं आएगा. वो मुंह बोली बात पे, बिकॉज मैं आपको जानता हूं, मैं आप पे मैं भी भरोसा करूं, जो आपको नहीं जानता वो आप पे कैसे भरोसा करेगा. Agree. एंड इफ समथिंग गोज रॉन्ग, देन हाउ डू आई प्रूव इट इन द कोर्ट? Agree. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई बिलीव. Okay, so my question is, what are the top mistakes buyers and sellers make usually? फर्स्टली, बिलीविंग इन द प्रोमिसेस. जब प्रॉपर्टी की बात होती है, लाइक आई सेड, इट्स वर्थ crores, lakhs of rupees, crores of rupees. So you can't merely believe on promise, first of all. Second of all, power of attorney is not ownership. Possession हो किसी के पास, लेकिन ownership rights नहीं हो, that doesn't mean that that person has a clear title. Agreement to sell as such is not ownership. Proper sale deed या कोई भी डीड जो प्रॉपरली स्टैम्प ड्यूटीड हो, जो प्रॉपरली रजिस्टर्ड हो, सिर्फ वही है एक ओनरशिप डॉक्यूमेंट जिसको आपको अल्टीमेटली सीक करना चाहिए. So these are some of the mistakes that I believe, because these are not mistakes, but I believe these are things that people are not educated about, and it needs awareness. And you people like you can educate people that all of these things, these are a big no. What you should seek is a proper sale deed or a proper instrument through which this property has been transferred from, let's say, A to B. Okay. So I got another question. So why do people underestimate the legal procedures, or maybe this is time consuming or it involves a lot of money? How it goes? Why people don't go for legal? अगर ये इतना आसान है, ये मेरे लिए सही है, why don't people afford it, or why don't people take it beforehand? See, people who know about it, they go for it. But a huge chunk of people, they don't understand it, or maybe they don't know about it, or they maybe don't, they don't have faith in the experts also, Okay. because there is, I believe, corruption at every stage in every society. So professionals also need to maintain a certain level of, ethics, basically, and make sure that if any document, let's say legal due diligence document or a property due diligence document, I as a lawyer, or any lawyer for that matter, it goes on the letterhead of your firm, जो भी आपका ये legal due diligence document होता है, and ये आप एक हिसाब से अगले को बोलते हो, जो आपका client होता है, कि property whether it is good to go or not. You reply in a yes or a no to the client, and based upon your opinion, the client takes a call. Now it goes on your letterhead. If it is wrong, let's say you have, ticked yes to a property, but ultimately वो property में कोई ना कहीं पे कुछ error था, तो ultimately आपकी credibility खराब हो रही. Okay. So another topic, that's another segment for this particular podcast. Before going to that, I just want to understand what is a procedure if I'm a buyer or a seller for me to make a legal due diligence in terms of when I'm selling or buying. Who should take it? It's a buyer or a seller? See, depends. कौन पैसा खर्चाना चाहता है इस चीज पे. आप, you as a real estate agent, since you're taking a commission, All right. since you are kind of trying to make ends meet, you are trying to connect two parties together, you can also take this responsibility and include this one aspect in the commission that you are ultimately taking. Or you can probably ask the buyer, you can show the property and tell him कि आप जी ये cost bear करें, and उसके बाद आप एक informed decision ले सकते हैं. I'll show you the properties, but which one to go for, and जो आपको सच में पसंद है प्रॉपर्टी, उसकी आप एक बारी ड्यू डिलिजेंस करवा दें, एंड वो आगे बढ़ सकते हैं. नाउ आंसरिंग टू योर क्वेश्चन, व्हिच ऑल थिंग्स आर important. See, there are two types of due diligences when we are talking about real estate. There is this property due diligence. जब कमर्शियल कोई प्रॉपर्टी है जो किसी बिल्डिंग में है, वो आपने बेचनी है, तो वो प्रॉपर्टी ड्यू डिलिजेंस हो गई.
लैंड ड्यू डिलिजेंस अलग है, दोनों के सेपरेट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ज़रूरत होते हैं। तो स्पेसिफिकली लेट्स से हम लैंड की अगर बात करते हैं तो आपकी जमाबंदी जो है, इट इज़ एन एक रेवेन्यू का एक डॉक्यूमेंट है जो बहुत ही क्रूशल है टू अंडरस्टैंड कि जो अल्टीमेटली राइट्स हैं वो कैसे फ्लो हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कैसे वो ट्रांसफर होते गए हैं, थ्रू व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स और डीड्स वो इफेक्चुएट हुए हैं, कितने को ओनर्स है उस प्रॉपर्टी पे, एंड मल्टीपल अदर थिंग्स। बेसिकली वो एक राइट्स का एक रिकॉर्ड है जिसमें आपको एक ग्लिम्स मिलती है, एक प्रॉपर एक आइडिया मिलता है कि इस खसरा नंबर या इस एरिया को ये कैसे इसमें राइट्स जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आगे आगे चलते रहे हैं। देन खसरा गिरदावरी एक और डॉक्यूमेंट होता है जो अल्टीमेटली आप लेमैन्स लैंग्वेज में समझिए, जो आपको अल्टीमेटली बताता है कि पोजेशन एज ऑन डेट किसके पास है। जमाबंदी जो डॉक्यूमेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अपडेटेड नॉर्मली आफ्टर 4 to 5 years। Okay. गिरदावरी जो है, खसरा गिरदावरी, ये बाई एनुअली चेंज होता है। तो जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है आपका जो नक्शा होता है, साइट प्लान या जो नक्शा है उस एरिया का। तो उस खसरा नंबर की डिमार्केशन प्रॉपरली डिमार्केटेड है, डज इट अलाइन विद द डिटेल्स दैट द सेलर हैज़ गिवन यू, एंड जो इसकी बाउंड्रीज है क्या वो प्रॉपरली है जैसा कि आपको सेलर ने बताया हुआ है। तो ये 2-3 चीज़ें जब आपके पास आती है अलॉन्ग विद द टाइटल, जो अगर सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, जिससे भी वो अल्टीमेटली ट्रांसफर इस बंदे के पास हुआ है जो आपके पास आता है, दैट आई वांट टू सेल दिस प्रॉपर्टी। Once you get all of these documents, then you kind of examine it and you go back, let's say in time 10-20 years to see कि चेंज जो है टाइटल की ये कैसे पास ऑन हो गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कहीं बीच में कोई लैग तो नहीं रहा है, कहीं पे कोई गैप तो नहीं है, क्या ये प्रॉपरली चेंज सेट हो रही है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अल्टीमेटली एक रजिस्टर्ड स्टैम्प ड्यूटी पेड तरीके से ये सारी चीज़ें हुई है, जो ओनर है क्या उसके पास एक रजिस्टर्ड डीड के थ्रू जो है उसके पास ओनरशिप राइट्स आए हैं, म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। म्यूटेशन अल्टीमेटली सेल डीड जब हो जाती है उसके बाद जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो म्यूटेशन, जिसे इंतकाल बोलते हैं, अपडेट करता है रिकॉर्ड्स अपने कि एज ऑन डेट ये ओनर है एंड ये है जो टैक्स वगैरह जो भी प्रॉपर्टी टैक्स होगा वो पे करेगा, ही इज लाइबल फॉर दैट। Then apart from that, once you go further, once you have all of these documents, then you go to the तहसीलदार and ask for certain documents। एक नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट एक होती है जहाँ बेसिकली आपको समझ आता है कोई लोन वगैरह मॉर्गेज प्रॉपर्टी तो नहीं है। नो इन कश्मीर और अदरवाइज ऑल्सो यू ऑल्सो नीड टू चेक कि कहीं कोई लिटिगेशन तो नहीं है इस पे, कोई थर्ड पार्टी क्लेम तो नहीं है इस चीज़ पे, बिकॉज यू नो दैट इन कश्मीर बहुत सारी इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज होती है जो प्रॉपरली अल्टीमेटली आपने एंट्रीज नहीं की होती है, डॉक्यूमेंटेशन जो भी उसकी हुई होती है, बड़ा इनफॉर्मल वे में सारी चीज़ें हो गई होती है। अब जो बंदा 100 करोड़ या 10 करोड़ या 50 करोड़ लगाएगा वो इनफॉर्मल एंट्रीज जो हो गई है उसके बेसिस पे वो डिसीजन नहीं लेगा। यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज प्रॉपरली डन एंड प्रॉपरली documented over a period of time. So these things become very important when you are ultimately making a decision. Lastly, which I believe is very important, you also need to understand कि मास्टर सिटी प्लान क्या बोल रहा है। आपने अगर एक एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, बट जो मास्टर सिटी प्लान है जो करंटली एप्लीकेबल है वो बताता है कि वहां पे रेजिडेंशियल या कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, इट इज नॉट डेजिग्नेटेड एज अ रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया, then even if you can't do a CLU first of all, because ultimately master city plan के साथ कंसिस्टेंट है नहीं। आपने लैंड तो खरीद ली ये सोच के कि इस पे मैं बिल्डिंग खड़ा कर दूंगा, बट आप परमिशन ही नहीं मिलने वाली आपको इस पे कुछ बनाना, बिकॉज मास्टर सिटी प्लान के साथ अलाइन नहीं हो रहा। तो वो ड्यू डिलिजेंस में ये चीज़ें भी कवर हो जाती है आपकी कि आप ओवरऑल देखते हो कि जो उस एरिया का या उस स्टेट का या उस जो भी लोकेशन है आपकी, वहाँ के लॉज क्या बता रहे हैं, वहाँ के बाय लॉज क्या बता रहे हैं, वहाँ के रेवेन्यू रिलेटेड लॉज क्या बता, लैंड लॉज क्या बता रहे हैं। सो इट देयर आर 10 to 15 थिंग्स दैट यू नीड टू गो थ्रू बिफोर टेकिंग टेलिंग योर क्लाइंट कि हाँ जी ओके इट इज़ गुड टू गो। लास्टली फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी पूरी क्लीन है, सारा कुछ है उसके पास, लेकिन वो दरिया के 50 मीटर की डिस्टेंस पे लोकेटेड है। नाउ एनओसी आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स से लेनी होती है बिफोर गेटिंग दैट परमिशन। नाउ वो बफर जोन में, बिकॉज देर आर लॉज जो आपको बताते हैं कि 100 या 200 मीटर के अंदर आपको जो है अगर आपका जो ज़मीन है वो आता है तो वो बफर जोन है जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन एज सच नहीं कर सकते। तो वो चीज़ भी आपने समझनी है, वो चीज़ भी देखनी है आपने। तो ये सारी चीज़ आप
एज अ लेमैन अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग द दलाल्स और द रियल एस्टेट एजेंट्स. मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा. एंड इनफैक्ट जो आपको बेच रहा है अल्टीमेटली चीज, शायद उसकी इतनी दाढ़ी हो, उसकी मार्केट स्टैंडिंग जबरदस्त हो, कभी कभी उसे भी नहीं पता होता कि मेरे पास क्लियर टाइटल है या नहीं. Right. नहीं होता आइडिया, क्योंकि अब 20 साल पहले कौन गया होता है उस चेन में, कहाँ पे. वो तो एक जो उसको माइन्यूटली देखेगा, अंडरस्टैंड करेगा, स्टडी करेगा फॉर 10-15 days, then obviously he'll come to you and tell you, okay, go for it. So you cannot blame anybody as such. हाँ, fraudsters अलग है, but I believe this is a practice which everybody needs to do, especially a credible man, because ultimately he would not want कि उसका नाम खराब हो जाए. So आगे बढ़ने से पहले उसे करवानी ही चाहिए एक बारी, so that जिसको भी वो बेच रहा है उसका नाम ना खराब हो जाए कल. So, as you said, there are many people who don't know about this. एक word है जो हर किसी owner के मुंह पे होता है. ये उसमें मिल्कियत. When I came to Kashmir, I used to go to people and I used to ask for the right set of documents. As you said, we need these type of documents, right? So for my lawyer, I need these set of lawyers, so these set of documents, so that I can give it to my lawyer and he can give me a legal due diligence. He chose ठीक, he chose गलत. And I used to get one answer. ये उसमें मिल्कियत. And then I was very amazed कि ये मिल्कियत तो चाहिए, but I have to get a lot of things to be known. क्योंकि as I know about due diligence, we have a two type of due diligence. एक तो हम online करते हैं and the one you said in a detailed, right? So totally depends कि amount कितना बड़ा होगा. If it's within crores, 2 crores, so we can go with the online due diligence. हाँ ठीक है, online papers है, क्योंकि now Kashmir is getting also into online and we are trying to get into online CADs, mutations. अब इसमें थोड़ा slow process हो रहा है because now people are learning. हमारे पटवारी साहब लैपटॉप चलाना सीख रहे हैं, ऑनलाइन सारा चलाना सीख रहे हैं, because there has been a lot of drawbacks also. We are getting into it. तो हमारे लिए अब रियल एस्टेट इंपॉर्टेंट है. अभी तक हमारे लिए रियल एस्टेट वॉज जस्ट अ होम जहाँ मैं रह रहा हूँ, तो उसके हमें कागज से टेंशन नहीं थी. अगर मैं रह रहा हूँ, अगर मेरे पास दुकान है, मैं उसमें बैठा हूँ, मुझे कोई निकाल नहीं सकता. दैट्स हाउ यूज टू बी. एंड रिसेंटली वी हैव सीन देयर आर मेनी रीजंस एज अ लीगली विच हैज़ बीन एप्लीकेबल नाउ. जैसे हमारे रिसेंटली एक कश्मीर में ही एक साइड से प्रॉपर्टी थी जहाँ पे SBI, SGFC, these big giants of banks have been vacated or they have been locked because उनके भी जब उन्होंने ये स्टार्ट किया होगा बैक इन लेट्स से 20 years 10 years बैक इन, तब जो भी उनके पास डॉक्यूमेंटेशन थी, जो उनके लॉयर्स ने देखा, तुम दे डिडंट वेंट इनटू डिटेल. दे जस्ट वेंट कि हाँ ऐसा ये मिल्कियत है, वही ये जो मिल्कियत है, ये तरह को बनाई. एंड नाउ दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इवन दो SBI हैज कम अप. उनके अब मतलब क्योंकि वो बिग जायंट है, दे आर वन ऑफ द बिग बैंक्स ऑल ओवर इंडिया, राइट? उनके जैसे से भी गलती हो सकती है. बट व्हेन वी सी आपका काम, बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू पे यू, आई विल टेल यू रोमा सीरियसली, मेरे को होता है क्या यार, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, रोमा तो कुछ कर नहीं रहा है. बट द वे यू आर टेलिंग दैट दीज थिंग्स आर देयर इन्वॉल्व्ड, वेयर आई नो नाउ whom I am paying and what I am paying for, because eventually with you or a CA, I have to make a deal clear. That's how I wanted to be in Kashmir. And I think you have given a really good idea about due diligence. But I thought जो हमारे कश्मीर के लोग हैं, they think to check a document and then to buy it. To check a document, I think it will take at least 15 days for sure. So when should a person as a buyer, as you said, सेलर भी कर सकता है, अपना डॉक्यूमेंट सेट कर सकता है, वो बना सकता है, एक पेज लीगल चेक बनता है हमारे साइड से, वेयर वी हैव ऑल दीज थिंग्स इन इट, एंड देन वी कैन प्रोवाइड दैट टू अ बायर एजेंट. जो क्योंकि हम यहाँ पे बायर एजेंट की नो बायर सिचुएशन दिवान पथक बायर पन्नेस लॉयर सत करना सु चेक सु सही वन सु गलत होना, बिकॉज इट विल हैव वन डॉक्यूमेंट देन. So to make that particular one document as in thorough, can you give me a rough idea what percentage of the property value it will incur? See, if I tell you ki it is not a costly affair, that would be wrong. See, depending upon the transactional value, or maybe, for example, I'll give you an example. 50 कनाल की land है, agricultural land है, and you understand since you deal with such things, 50 कनाल की land में कोई एक owner नहीं होता usually. Right. उसमें multiple जो ओनर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, जिनकी वो लैंड होती है. कभी कभी ऐसा होता है कि एक लैंड होती किसी और की है लेकिन पोजेशन किसी और की है. वो आपस में मुंह बोला उनने एक्सचेंज कर लिया होता है. इट इज नॉट रिकॉर्डेड ऑल्सो एट इन एनी डॉक्यूमेंट समटाइम्स. सो how do you plan on understanding all of these things in 2 days or 3 days? You have to physically go there, you have to meet the patwari, you have to get certain documents from the tehsildar, you have to check documents online, then the documents that the client has provided you have to go through them and somehow build a chain.
नॉट बिल्ड ए चेन, अंडरस्टैंड दैट ये जो चेन है ये अल्टीमेटली बराबर बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, जो डॉक्यूमेंटेशन है क्या वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, प्रॉपरली स्टैम्प्ड है या नहीं है. सो आफ्टर गोइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स देन यू, एज लाइक आई सेड, आपको मास्टर सिटी प्लान में जाना है. अब अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपने देखना है कि क्या इसके पास सीटीओ है, कंसेंट टू ऑपरेट है, एनवायरमेंटल लॉज वगैरह जो है वो प्रॉपरली इसने मीट किए हुए हैं, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होती है आपकी, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो अल्टीमेटली आपने देखनी होती है, क्या प्रॉपर्टी टैक्सेस इसने प्रॉपरली पे किए हुए हैं, सारी चीज़ें. तो जब 10 से 15 चीज़ें, मतलब 10 से 15 लॉज या एक्ट्स आपको देखनी पड़ती है बिफोर इन्फॉर्मिंग योर क्लाइंट, ओके प्लीज गो ahead और प्लीज डोंट गो ahead with this thing. So obviously I believe it is a cumbersome task. It is not a task that you can do in 10 to 15 minutes or let's say 1 or 2 days. It requires a team. And most of the documents that you understand are written in Urdu. Right. जो पटवारी वो डॉक्यूमेंट लिखता है वो दूसरी बार खुद भी वो डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ पाता, वो Agree. ऐसी उर्दू में लिखा होता है. Right. I know people who understand Farsi, who are experts in Urdu, even they can't understand that document. So in order to get them translated, it also takes 1 to 2 days. Right. फिर उसके बाद ट्रांसलेशन के बाद क्या करेक्ट ट्रांसलेशन हुई है या नहीं हुई है वो कौन चेक करेगा. Agree. तो ट्रांसलेशन भी एक क्रूशियल पॉइंट बनता है. अगर आप सही चीज को सही तरीके से ट्रांसलेट नहीं किया, कंप्लीटली मीनिंग ही चेंज हो जाती है. तो बड़ा डेलिकेसी के साथ चीजें देखनी पड़ती है. स्पेशली हम नॉर्मली जो केसेस होते हैं वो लेट्स से कुछ लाखों के होते हैं, या कभी कभी कोई करोड़ों का केस होता है, कभी कोई मल्टी वो चीज आती है. यहाँ पे आपके पास आया ही चीज है जो वर्थ करोड़ है, कंफर्म्ड. 10 करोड़, 20 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 60 लाख, इट इज बिग स्टेक है. तो इसमें तो आप अपना दिमाग तो लगाओगे ही ना. तो ऑब्वियसली दिमाग, टाइम, पैसा, टीम, इतनी सारी चीजें हैं. सो ऑब्वियसली इट इज समथिंग दैट डिमांड्स की अगला बंदा दे. अब मोबाइल फोन आप खरीदते हो, आप पहले देखते हो सैमसंग खरीदूं या एप्पल खरीदूं या जो भी, आई डोंट वांट टू नेम एनी ब्रांड. फिर आप फीचर्स देखते हो, फिर आप कैमरा देखते हो, आजकल सब कुछ कैमरा से होता है. तो आप 10-15 दिन पहले प्रॉपर एक रिसर्च करते हो, अंडरस्टैंड करते हो कौन सा सही रहेगा, फिर प्राइसिंग देखते हो, हर एक चीज. देन यू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ओके आई दिस इज व्हाट आई वांट टू टेक, जो आपके प्रेस्टीज के साथ भी शायद मैच होता है वगैरह वगैरह. सो सिमिलरली ये चीज़ है, इसमें आप करोड़ों रुपए लगा रहे हो, आपको थोड़ा बहुत पैसा शायद आप अगर 2% कमा रहे हो उस पर, उसका 0.2% या 0.3% या 0.5% अगर उस चीज़ पे लगाया जाए, अगर 10 करोड़ की चीज़ आपकी लाख रुपए में फॉर एग्जांपल सेव हो रही है, या एक इन्फॉर्म डिसीजन आप बता रहे हो, तो इसमें क्या परेशानी है, मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा. Got वाई आर वी अवॉइडिंग दिस स्टेप? Right. Just because we don't know about this step, that doesn't mean that it doesn't exist. It exists. You can make an informed decision basically. So the costs, sorry to interrupt you, but the costs depend upon the transaction value ultimately and the area ultimately जिससे आप deal करें. There are hundreds of canals of land. So you're a better judge to possibly determine कि कितना फीस इसमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. I agree. So I will just close this in this segment as a clear document is a chain, not just one document. So for this chain, you need proper resources, you need a proper investments to get these things done, and that requires a money, and that's important because we are into a service industry which is lagging in Kashmir. यहाँ पे सर्विस या प्रोफेशनल्स को उतना माना नहीं जाता. Last time I had a podcast with Designer Tahir. I told him about architect. He's an architect, okay? And I told him कि जनाब आपके और दसिल में क्या फ़र्क ही है. अगर मेरे को मकान बनाना है मैं दसिल से बनाऊंगा, आपसे क्यों बनाऊंगा. एंड उनका भी कॉस्ट समवेयर अराउंड ये रहता है 0.2%, 0.3% ऑफ द होल प्रॉपर्टी विच वी इन्वॉल्व के, क्योंकि उनका भी एक प्रोफेशन है. इन कश्मीर आई डोंट थिंक पीपल गिव दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस टू प्रोफेशनल्स, एंड दैट्स वेयर वी आर लैगिंग. एंड एज वी द न्यू पीपल हु आर कमिंग टू दिस इंडस्ट्री, कमिंग बाहर के बड़े बड़े जॉब हमने छोड़े और यहाँ पे कश्मीर को कुछ देने के लिए आ रहा है, ना कि बेचने के लिए आ रहा है. सो वी आर ट्राइंग टू सेट अ न्यू स्टैंडर्ड्स इन रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस बिकॉज वी, यू एंड मी नो दैट देयर आर बिग जायंट्स कमिंग टू कश्मीर. I don't know like people will be aware or not, but there are big giants who are already in Kashmir. If I cannot name them right now at this stage, but yes, there are. So keeping that in mind, I just want to know about the hidden risks like back taxes, pending mutations, mortgage, court case. How can a buyer protect themselves now here? I think I've already told you about all of these things. Mhm. I believe जो hidden चीजें हैं वही तो आपकी ड्यू डिलिजेंस में कवर होती है. जो नॉर्मल लेमैन
या वो बंदा भी जिसे शायद पूरा भरोसा है कि ये प्रॉपर्टी पे मेरा पूरा हक है और मैं पूरा टाइटल है मेरे पास, समटाइम्स इवन ही डजंट नो कि क्या उसके पास क्लियर टाइटल है या नहीं है। कुछ चीज़ें बड़ी हिडन होती है, कुछ चीज़ें सालों पहले से चलती आ रही है बट नोबडी इज अवेयर अबाउट इट। देयर आर पेंडिंग लिटिगेशंस, थर्ड पार्टी क्लेम्स होती हैं जो आइडिया होता नहीं। कभी कभी डबल ओनरशिप्स होती है, दो दो म्यूटेशंस हो गई होती है, एंट्री ही गलत हो गई होती है कभी कभी। और मे बी we cannot undermine the fact that ultimately डिपार्टमेंटल साइड से भी हैं कुछ लैक्सिटीज है, कुछ एरर्स हो ही जाते हैं, क्लरिकल एरर्स होते हैं या कुछ अनएथिकल चीजें भी होती रहती है यहाँ पे जो हमें देखने को भी मिलते रहते हैं यहाँ पे, फ्रॉड्स वगैरह जो भी चीजें होती है। सो अल्टीमेटली हाउ डू यू मिनिमाइज योर रिस्क, how do you mitigate that risk? I as a corporate lawyer, or all the corporate lawyers, or people lawyers, normal lawyers who are dealing with this aspect of the law, they understand, they know how to identify those risks, they know कि कौन से वो एरियाज हैं जहां पे डाइव मारनी है एंड वहां से कुरेद के निकालनी है वो चीज जहां पे रिस्क लाई कर सकती है। सी, आपने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी 10 करोड़ रुपए, एंड कल को उस पर डिस्प्यूट होता है, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी जो कि 10 साल तक उस पर आपका लिटिगेशन चलेगा, आपके वकील का कॉस्ट, अल्टीमेटली एविडेंस कितना है, आपके मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल डिस्ट्रेस, 10 चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती है। आपका 10 करोड़ रुपए स्टेक पे है, आपका लिटिगेशन के जो चार्जेस है वो भी कोई सस्ते होते नहीं है, इमोशनल डिस्ट्रेस तो आप छोड़ ही दीजिए, आपकी जमा पूंजी होती है, वो हार्ड अर्न मनी होता है। तो वो सारी चीजें अवॉइड करने के लिए अगर आप ये छोटी सी एक्सरसाइज करें, उसकी वजह से आप जैसे लोग जो है वो प्रॉस्पर हो सकते हैं। बिकॉज what is lacking I believe is that there is a trust deficit basically। जो मार्केट ये बना हुआ है क्योंकि ये अनएथिकली हो रहा है और मे बी एक प्रोफेशनलिज्म के साथ नहीं हो रहा है, देयर आर नॉट वाइट कॉलर्ड पीपल हु आर डूइंग इट एंड हेंस पीपल आर नॉट बिलीविंग इन देम, और मे बी कर भी रहे हैं लेकिन फिर फंस जाते हैं। So I think whatever you are doing a good job. You are doing it professionally, and you are backed up by lawyers. If not me, but tomorrow let's say किसी और के साथ, but you're doing it professionally. You're doing it in a certain way जिससे जो बंदा आ रहा है उसे वैल्यू फॉर मनी मिले, वो फंस ना जाए किसी चीज में, एंड अल्टीमेटली यू विल प्रॉस्पर। आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है इस चीज से। सो आई थिंक ओवरऑल इस मार्केट को प्रॉस्पर होने के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ये जो हम आज जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड द लैंड लॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर रेवेन्यू के क्या है, प्रोसीजर्स क्या क्या है, कौन कौन से स्टेप्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइटल क्या होता है, टाइटल चेन क्या चीज होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी से क्या होता है और क्या नहीं मिलता है वो समझना है, एटीएस क्या है, अग्रीमेंट टू सेल है क्या, सेल डीड क्या है, क्या डिफरेंस है इन दो चीजों में, एटीएस में कौन कौन से क्लॉजेस हमें डालने चाहिए जिससे आपकी अल्टीमेटली जो डील है वो लॉक हो जाए और प्रॉपरली बुलेट प्रूफ हो जाए, कोई उसमें कोई रिस्क ना रहे। डिस्प्यूट्स आर इनएविटेबल, वो कभी भी, आई एम नॉट सेइंग कि आप ड्यू डिलिजेंस कर लो या कुछ कर लो, वो 1% 2% चांस हमेशा रहता है। अभी आप हम दो बैठे हुए हैं, अभी कोई बंदा आ जाए, जी आपने जी मेरे पैर पे टायर चला दिया, आपने नहीं चढ़ाया हुआ, Right. बट देन वो केस कर सकता है ना। Right. सो डिस्प्यूट इज इनएविटेबल, इट कैन अराइज एनी टाइम, बट आपने कितने प्रिकॉशंस लिए हैं, आपके पास कितना डॉक्यूमेंटेशन है, वो अल्टीमेटली आपको सेफगार्ड करता है एंड हेल्प्स यू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अल्टीमेटली। Okay, so I have a question. So the question will go like, अगर एक transactions हो रही है market में, there are many transactions happening in terms of real estate. People say that the market is slow, which I don't believe it, because you and me deal with this every day, and people are buying and selling heavily. Just want to understand if you can tell people how Kashmir Realtor and IMR Law Office is working together for a particular deal, how the process looks like. See, ultimately, as far as I'm concerned, I'm at the back end. I help you probably in ultimately whatever you are selling, मैं वो सेलेबल है या नहीं है वो चीज़ आपको बताता हूँ, क्या ये मार्केटेबल है या नहीं है वो आपको बता रहा हूँ, क्या क्या लॉज है जो अट्रैक्ट हो रहे हैं लीगली। आई एम योर लीगल पार्टनर इन अ वे, एंड यू अल्टीमेटली यू आर द बॉस, यू आर मेकिंग ऑल द डिसीजंस, यू आर सेलिंग दैट प्रॉपर्टी जिसका आपको ओके आता है, वो आप आगे बताते हैं लोगों को कि कैसे खरीदना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो चेक्ड है। So ultimately, you are helping people to make a informed decision,
And I'm sure, if people follow these practices slowly, the owners also, the landowners or the owner, they'll also make sure that all their documentation, all their documents, they are properly registered, they are properly एक chain maintained है. वो भी 10 दिन 15 दिन लगाएंगे इन सारी चीज़ों को बनाने में, because usually यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपको सेलर देगा, या which has issued document. एक रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट ओनरशिप नहीं बताता, एंड वो कब अपडेट हुआ है कब नहीं अपडेट हुआ है वो आपको कैसे पता है? Right. 2015 का डॉक्यूमेंट अगर कोई है, हाँ जमाबंदी है या गिरदावरी ये है या कोई भी रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट है 2015 का, या फर्द है कोई 2015 की, मुझे 2025 में प्रॉपर्टी खरीदनी है, 26 में प्रॉपर्टी खरीदनी है, मैं उसके बेसिस पे कैसे खरीदूंगा? आई नीड अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स एज ऑन डेट. वो कहाँ से, वो कैसे आप चेक करोगे, वो कहाँ से आप ढूंढोगे, वो आपको सेलर से मांगने हैं. एंड सेलर बिफोर ही कम्स gets into the market and announces that he's ready to sell, he has to make sure that he has at least 3 to 4 these 3 to 4 documents that we mentioned, वो उसके पास होनी चाहिए तभी वो मार्केट में निकले, नहीं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. Okay. So when I say being professional legally, how does it make a difference for a real estate transaction? Like अगर हम professional नहीं है, and how professional you are with your work and what type of professionalism you imbibe in your particular practices. सी बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है. जब तक प्रोफेशनलिज्म नहीं था तब भी चीज़ें हो ही रही थी, एंड चीज़ें तो होंगी भी विदाउट प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म ऑल्सो. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक स्टेज होता है जहाँ पे आप डेवलपिंग से डेवलप्ड प्लेस बनते हो, जहाँ पे आप बोलते हो कि नहीं जी इकोनॉमी को ओवरऑल हमें ऊंचा करना है, अप करना है, जहाँ पे आप बोलते हो कि ओवरऑल एज ए सोसाइटी वी बिकम ए वेलफेयर सोसाइटी. आप जब सिविक सेंस की बात करते हो, जब ओवरऑल अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी की बात करें, दीज थिंग्स बिकम वेरी क्रूशल. यू हैव टू मेक श्योर वट एवर डीलिंग्स, वट एवर ट्रांजैक्शंस, बी इट रियल एस्टेट और एनी अदर, those transactions have to be crystal clear, बड़ा एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. वो तभी हो पाएगी. देखिए मैं आप पे भरोसा करता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी मुझ पे करते हो, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट मांगता है डॉक्यूमेंट, कोर्ट मांगता है एक रिटन एक चीज़ मांगता है. अब अगर वो मिसिंग है, कल को आपका जो फेस वैल्यू है, जो मार्केट स्टैंडिंग है, वो मुझे कैसे हेल्प करेगी? नहीं कर सकती. आप तो सच्चे आदमी हो, आई बिलीव इट, बट आपको खुद भी नहीं पता था कि आपके पास प्रॉपर्टी सही तरीके से आई है या नहीं आई है. Agree. उसमें मैं फंस गया ना, या आपने मुझे तो बेच दी लेकिन थर्ड पार्टी क्लेम भी चल रही है, Right. कोई दूसरा भी उस पे जो हक जमा रहा है उस प्रॉपर्टी पे, जो आपको आइडिया था लेकिन आपने मुझे नहीं बताया, फंस गया मैं. Mhm. तो ये सारी चीज़ें तभी आपको पता चल पाती है जब आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हो. So moving to the new segment that's about the case studies and the real stories. Can you share some of the experiences without naming anyone where legal intervention saved a client from a huge loss? लॉट्स ऑफ केसेस ऑन अ डेली डे टू डे बेसिस. ये चीज़ें कोई छुपी नहीं रहती है. हर दिन हर दूसरे दिन आपको फ्रॉड की या किसी चीज़ की स्टोरी मिल ही जाती है न्यूज़ में. तो अल्टीमेटली बहुत एक जो फनी एक इंसिडेंट था मेरे हिसाब से, फनी भी था बट जिसने बुक था उसके लिए थोड़ा स्केरी भी था. सो आई नो एक मेरे जानने ही वाले हैं जिनने अल्टीमेटली रिटायर हो गए, एंड रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसा होता है जो आता है आपके पास, जीबी फंड वगैरह जो सेविंग्स होती है वगैरह वगैरह, एंड ही थॉट मे बी इट वुड बी ए ग्रेट डिसीजन कि अगर ये सारा अमाउंट जो है वो किसी लैंड में वो इन्वेस्ट करे. अल्टीमेटली ही डिड, एंड उसने कुछ लैंड ली एंड जो भी जमा पूंजी थी उस चीज़ में लगा दी. एंड ऑब्वियसली एक ब्रोकर इन्वॉल्व थे, ब्रोकर ने जी लैंड ले ली एंड उनने मुंह बोली एक डील कर दी, टोकन अमाउंट एक हेफ्टी एक टोकन अमाउंट लिया, एंड अल्टीमेटली बोला कि कुछ दिनों के बाद आपके पास जो है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये सब चीज़ें हो जाएगी. अब ये बात आप समझिए 2022 की है, अभी तक इट इज़ हैंगिंग इन द एयर. फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्रॉड कमिट हो गया. अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जो ये बायर थे जिससे पैसे लिया हुआ था, वो 3 साल से ना ही कोई कोर्ट केस कर पा रहा था क्योंकि उसके पास कोई रिटन कोई डॉक्यूमेंट नहीं था. वो पुलिस के पास भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा था बिकॉज जो हमारी सोसाइटी है यहाँ पे उनका मानना था, जब मैंने उनसे बात की कि वाई हैवंट यू टेकन एनी एक्शन, मैं बस उसको मोल मेरी बेटी की शादी हो गई है, अगर पुलिस थाना समझ गस तो ताकि अगर कोई मुझे देखेगा वहाँ पे तो वो अच्छा नहीं रहेगा. तो ऐसा भी थॉट प्रोसेस है. इज्जत पे बात आ जाती है अगर आप थाने में पाए गए या अगर आप किसी डिस्प्यूट में कोर्ट में चले गए, जो यहाँ पे है जो एक मानते हैं ऐसी भी एक कैटेगरी ऑफ लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं.
तो अल्टीमेटली 4 साल से 3 साल से इट इज़ हैंगिंग इन द एयर, अल्टीमेटली नथिंग हैज़ हैपेंड। एंड स्टेज वो आ गई है जहाँ पे ब्रोकर जो है वो खुलेआम सीना चोड़ चौड़ा रख के बता रहा है कि मैं जी ना पैसे वापस दे रहा हूँ, एंड ना ही आपने मुझे मैं लैंड आपको दे रहा हूँ। एंड क्योंकि आपने जी मुझे गाली क्यों निकाली, 4 साल के बाद आपने मुझे गाली क्यों निकाली, आप पुलिस के पास क्यों गए, मैं तो आपको देने ही वाला था। सो इस छोटे से इंसिडेंट से ये समझ आता है कि अल्टीमेटली कितना इजी और कितना आसान बन चुका है यहाँ पे कि अल्टीमेटली किसी के साथ फ्रॉड करना, किसी को फंसाना एक ट्रांजैक्शन में। आपने पैसा लिया हुआ है, अल्टीमेटली आप वो परफॉर्म नहीं कर रहे हो जो आपके साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जहाँ पे आप प्रूव कर पाओ कि हाँ जी मैंने पैसे इसको दिए हैं। हो सकता है कभी कैश ट्रांजैक्शन हुई हो। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये बड़ा नॉर्मल है यहाँ पे, हर दूसरे दिन ऐसी चीज़ें होती है। सो हाउ टू अवॉइड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आई थिंक आज का डिस्कशन हमारा उसी चीज़ पे है कि ये चीज़ें कैसे अवॉइड की जा सकती है। सो जो हम आपस में भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि हम कैसे अवॉइड करें ना, एक क्रिटिकल एक एस्पेक्ट है जो टोकन मनी फॉर एग्जांपल एक होता है। आप जब भी टोकन मनी लेते होगे, जब आपको पता है कि हाँ जी एक प्रॉपर्टी है जिसमें एक क्लियर टाइटल है जो मैं बेच रहा हूँ किसी को अल्टीमेटली, या जिसमें मैं एक एजेंट की तरह काम कर रहा हूँ, उस पर एक क्लियर टाइटल है। फिर आप आगे जाते हो, उसे बेचने निकलते हो, फिर आप बोलते हो कि हाँ जी आप 3-4 प्रॉपर्टीज में आपको दिखाता हूँ, अगर आपको कोई पसंद आ गई आप टोकन मनी मुझे दे दो। आप एक प्रॉपर एक रिसीप्ट देते हो उसको, जिस पे आप टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हो, एंड उसको फर्दर उसके आप एक अग्रीमेंट टू सेल करते हो। जो कमर्शियल में भी होता है, आप वो क्या कहते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो भी बेचते हैं उसमें आप अग्रीमेंट टू सेल। सो ये जो ये अग्रीमेंट टू सेल डॉक्यूमेंट होता है, जो मैंने पहले भी आपको बताया, अल्टीमेटली दिस इज नॉट अ डॉक्यूमेंट दैट ट्रांसफर्स और क्रिएट्स ओनरशिप राइट। इट क्रिएट्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन और कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, जहां पे आप दूसरी पार्टी को बता सकते हो एक परफॉर्म करने के लिए उसके साइड ऑफ जो ड्यूटीज होती हैं। So you gave an idea about how what has happened to that chap or that particular person जिसने पूरी जमा पूंजी इसमें इन्वेस्ट की. So can you give it a price, like how much price he have paid for this particular thing? ये 1.5 करोड़ की बात है। Wow. 1.5 करोड़, जिसमें शायद उसके खुद के बच्चे की भी कुछ सेविंग्स थी, उसकी खुद की सेविंग्स थी। कलेक्टिवली फैमिली ने एक डिसीजन लिया कि चलो जी ये पैसा ज़मीन पे लगाते हैं, सिंस जो रियल एस्टेट मार्केट है वो अप हो रहा है, और वो शायद किसी एक्सट्रीम ऑफ प्रोफेशन से बिलोंग करते थे। वो चाहते थे कि कुछ उसी के रिलेटेड उसमें कुछ फर्दर कुछ बिजनेस क्रिएट करूं उस लैंड पे, जो अल्टीमेटली वो नहीं कर पाए। जो भी उनके प्लान्स थे लास्ट शायद 30 साल के कि ऐसा करूंगा फिर ऐसा होगा तो ये करूंगा, वो सब पानी में चले गए, बिकॉज एक बंदे ने सारी उस पूरी प्लानिंग पे जो है पानी फेर दिया। एंड Okay. अल्टीमेटली एज ऑन डेट उनके पास पैसे भी वापस नहीं आए हैं, ना ही उनके पास कोई लैंड है। But if he would have got a real advisor as a legal advisor with him, maybe it would have cost him not more than 1 lakh or something like 2 lakhs. Eventually, and a right broker, because you said कि उसका सीना छोड़ के वो आगे चल रहा है मार्केट में, because the more the important topic we have to discuss today about is कि एक professional, एक registered, एक legal with a license holder and having a proper set of documentation and doing it in a professional way is very important. So we are not talking about the legal facilities here, but we have to see who is the intermediator as well, who is making this transaction for you. I will tell you an example. I got into a transaction with one of the big shots of Kashmir. And when I got into transaction, he got involved his own realtor, I will call it, but he's a local person who was a lawyer and now has changed his profession from law to real estate because there's a lot of money involved. आप चाय वाले से भी देखो, वो भी बोलेगा मेरा कितना. आप कहीं भी जाओ, you will talk about a real estate transaction. कोई किसी को किराया पे दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, वो बोलेगा भाई मेरा कितना, because everybody know that real estate brokers make big amount. But we do, eventually we earn a lot of money. But the thing is, there's a lot of things involved because we are the people who take all the responsibilities on our shoulder. I will make sure that I was the person in this particular deal who was making everything in a professional way. फिर उसका वो लोकल द्राला तो उन्हें थावत ऐसे छुपाई बजाना ओनर पाने तो चवाटा जी पेपर से कुछ कहीं, because I asked him for a proper legal fees which has to be get in for that particular property. इस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए इतना पैसा लगेगा, तो उन्हें नर्स असस जमोने इसके क्या चाहे ब्रोकेज दलाली, उसने बोला कि वर्ड यूज दिस वर्ड, तेरी दलाली है तो अपनी दलाली अपने ट्रांजेक्शन के बाद ले ले. तो आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन बिकॉज आई रियली चूज माई क्लाइंट्स
even though he was a big shot, a big client for me. I told him, boss, if I am the one who is making this transaction, I will make it in my way because that's the right way. If you are involving this local broker or anybody you trust, you can go with him. Hadbadi property has much. I had done a lot of transactions with him. I have made a lot of money with him and all that things. I said, that's fine, but there is a way. What if tomorrow जो भी इसने कोई आपको प्रॉपर्टी भेजी होगी या जो आपने ली होगी एज एन इन्वेस्टमेंट एंड नाउ दैट हैज़ अ प्रॉब्लम विद द लीगल थिंग्स, how will you take it? तो नस बस एक इस घर गसित एंड ऑल दैट, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। मतलब चलो ठीक है, तो आप इसके घर जाएंगे, क्या करेंगे घर घर जाके? नस महलस में सर इज ही इज़ अ बिग नेम, ही वाज अ लॉयर, ही वाज दिस, ही इज़ अ वेरी गुड बिग नेम इन द मार्केट उसका है। Then I gave him an example outside हम क्या करते थे. There was a proper way of doing it. There is a realtor who makes sure that he will give a service because we are the people we give services mostly. अब घर बैठे बैठे अपना दस्तखत करो, बाकी हमारा काम है वो हम देख लेंगे. But keeping this in mind, as you said, कि किसी ना छोड़ के, these things are there in the market, but we as a person are trying to educate people that ये सीखो, सही से समझो. If you are getting into a real estate transaction, you are making always a huge amount into it. It is with emotions. It is with a lot of मनी सेविंग्स, जो भी आपने पूरी पूंजी जो आपकी होगी वो आप इसमें डाल रहे हो. जैसे आपने बोला कि उनका जीपी फंड आने वाला था, 40 साल बेचारे ने काम करके उतना पैसा कमाया, अब वो पैसा लगाया वरना सोना बिके चाउसी आत्म खुद बेहतर ऐसा करे कैश तो मुझे वट एवर. सो बट if I came when I came to Kashmir, I told people that I came here because I see a gap when somebody gets married and they have a lot of gold with them, because हमारा culture ही वैसा, हम सोना अच्छा हम gifts करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, and a bride gets a good amount of money. Let's say today's world, क्योंकि पैसा बड़ा, gold का prices बड़े, in today's world they have almost an average of 30 lakhs with them, and which is a good start for the real estate in Kashmir. But I asked those people, a case study has been done. I asked those people, why don't you invest this in lands, or why don't you invest this in real estate where you can earn money? आपको करना कुछ नहीं, आप ज़मीन ले लो, ज़मीन रखो, बाकी चीज़ें ये आपको खुद पैसा बनाएगा, आपको संभालना नहीं, आपको बैंक्स के पास नहीं जाना है. बट द चैलेंज वॉज कि जनाब हम डरते हैं मार्केट से, बिकॉज दोज पीपल आर द फर्स्ट टाइम बायर्स. ये कोई बिग शॉट्स नहीं है, दे हैव ऑल द मनी विद देम. बट देन आई एजुकेट देम अबाउट द लीगल थिंग्स. जहाँ आप लीगल एक एडवाइज़र ले लो, उससे बात कर लो, उसके बाद चलो मैं एक लीगल, आई एम अरेरा बेस्ड, आई एम अ रजिस्टर्ड गाय who is in the market, I have a base. But then eventually there is a gap which I think we should fill up, and we should tell people that if you are willing to invest in real estate in Kashmir, which is booming, because I left a big paid job back in Dubai. इसलिए छोड़ा क्योंकि I thought Kashmir is developing. Kashmir has a lot of scope for big MNCs to come in. It's not about IT आएगा, बैंगलोर बनेगा, बट यहाँ पे सर अगर होटल बनाएंगे, you will have a lot of jobs. And real estate is a industry where एक ट्रक ड्राइवर से लेके आप सेल्स मैनेजर तक, all these people get involved. And अगर कोई बाहर से आ भी रहा है, कोई बड़ा होटल आ रहा है, बस उन्हें असोस के कम हुई, but he will come with his own name first. Second, he will provide a lot of opportunities here in Kashmir. And with that, I think people should take real estate as an investment. जहाँ बाहर हम, मैं भी जब बाहर था, I will tell you example. यहाँ पे बहुत सारे traditions भी है, cultures भी है कि हम loan नहीं लेते हैं, हम बाकी चीज़ें नहीं, हम leverage नहीं करते हैं. But if we involve banks, I think if we involve banks, we are 90% done with the due diligence. Is it right? Yes, that is true because banks have ways जहाँ से वो हर एक प्रॉपर्टी की जो ड्यू डिलिजेंस है या लैंड रिलेटेड कोई भी ड्यू डिलिजेंस है वो प्रॉपरली उनके पास डिपार्टमेंट्स होते हैं जो चेक करते हैं, who are in touch with the revenue department, who make sure that every document that comes to their office is properly scrutinized, checked, double checked, and then only obviously they give loans या mortgage पे जो भी लोन होते हैं वगैरह वगैरह. So they have their own systems जो वो मद्देनजर रखते हुए ही वो आगे कॉल्स लेते हैं. एंड दैट इज जब बैंक्स करते हैं, बैंक्स आर व्हाट, दीज आर ऑफिसेज, दीज आर कॉर्पोरेट्स, दीज आर ऑर्गेनाइजेशंस हु डू थिंग्स प्रॉपरली, हु डू थिंग्स जो लीगली एक सेफ्टी जहाँ पे क्रिएट हो. कल को अगर लेट्स से डिस्प्यूट भी हो जाए, दे हैव enormous amount of documentation which they can probably show to the court and ultimately establish the fact कि हाँ जी ये जो चीज़ है ये एज ऑन डेट ऐसी थी. बट ऑन द कॉन्ट्ररी एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है, वो कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं कर रहा है, वो कहीं से भी समझ नहीं
पाने की कोशिश भी नहीं करता कि ये कैसे चेन आई है, क्या ये इस बंदे के नाम पे है या नहीं है. So lots of things which we discussed. So as an individual also, see, I believe as a seller, when you are out there in the market to sell the product or sell your property, you have to, it is first and foremost, it is your duty to make sure that all the documentation is intact. All the documentation that I mentioned. बायर पे भी एक ड्यूटी है कि वो चेक करे ये सारी चीज़ें, जो जो चीज़ें हैं जो सेलर ने दी हैं या सेलर ने ऑलरेडी अगर मेंटेन करके रखी हुई है, वो उसे एक क्रॉस वेरीफाई करे या डबल चेक करे उस चीज़ के बीच में. एंड अल्टीमेटली आपकी भी ड्यूटी है, बिकॉज यू आर एन इंटरमीडियरी, यू आर एन एजेंट maybe for one of the parties, and ultimately you're trying to connect two parties. So it Right. is your duty also to make sure आप एक तीसरा चेक लगा दीजिए. अगर दोनों पार्टीज अपनी जगह पे कर लिया, आप भी अपनी जगह पे चेक करवा दीजिए. सो आई वोंट से कि आपकी ड्यूटी है या सेलर की है या बायर की है. वन ऑफ द पार्टीज और ऑल थ्री ऑफ you have to make sure that whatever you are getting into ultimately is a transaction, and you have to make sure, because this is how world works right now. Right. If you want to modernize, if you want to become a developed place, if you want to create a welfare society jahan pe everybody is prospering, and there are एरियाज जो हमारे सेक्टर्स है, बेसिकली रियल एस्टेट भी एक सेक्टर है जो इकोनॉमी को पुश कर सकता है यहाँ की. तो इसको पुश कैसे दिया जाएगा, इसको जो एक कंट्रीब्यूटर बन सकता है यहाँ की जीडीपी का अल्टीमेटली. सो यू हैव टू मेक श्योर कि क्या क्या चेक्स हम कर सकते हैं कि ये इकोनॉमी यहाँ से भी अप हो जाए, बिकॉज वी सफर फ्रॉम ए लॉट ऑफ चैलेंजेस. सो लेट्स नॉट क्रिएट वन मोर चैलेंज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. लेट्स फाइंड आउट वेज कि कैसे इस चीज में ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा. राइट नाउ द सिचुएशन इज दैट देयर आर tremendous amount of properties which are ready to be sold, जो बेचना चाहते हैं लोग, लेकिन खरीदने वाले हैं ही नहीं. Right. बहुत कम है खरीदने वाले, या खरीदना चाह भी रहे हैं लेकिन रुक रहे हैं मेजरली इन्हीं हर्डल्स की वजह से. दे डोंट नो. रहा बात आपकी सोने की, या देखिए अल्टीमेटली लैंड हो, सोना, कोई भी एसेट हो जिसपे आप पैसा लगा रहे हो, या कोई भी चीज़ स्टॉक्स है या कोई भी चीज़ है, वो मार्केट पे डिपेंड करता है. रिस्क तो है ही है. कोई चीज़ सैचुरेशन पे आ गई तो आ गई, वो उससे आगे नहीं बढ़ने वाली है. सो दैट इज नॉट दैट you as a probably as a real estate agent can tell your clients कि हाँ जी किस चीज़ पे पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए. आई बिलीव वो भी आपके स्कोप में आना चाहिए एज एन एडवाइजर, रियल एस्टेट एडवाइजर. बट एज फार एज लीगल सर्विसेज आर कंसर्न्ड, आई बिलीव माई जॉब हेयर एंड्स उस पॉइंट पे कि जहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ इट इज़ ओके टू बी सोल्ड और बॉट. Got it. So as you handle all our agreements for Kashmir Realtor, I just want to ask you some of the questions because this is a new segment we are having here. So what are the most important clause people should pay attention to in an There's agreement? not one single clause that one should pay attention to. Deal, there are stages in a deal. आप टोकन अमाउंट देते हो, फिर आप अग्रीमेंट टू सेल एंटर करते हो वो डॉक्यूमेंट में, एंड अल्टीमेटली एक सेल डीड होती है जो प्रॉपरली स्टैम्प ड्यूटी रजिस्टर्ड हो जाती है, या जो भी इंस्ट्रूमेंट वो डीड वहाँ पे रहती है, गिफ्ट डीड हो सकती है, जो भी चीज़ हो सकती है. अब गिफ्ट डीड में ऑब्वियसली गिफ्ट इन्वॉल्व है तो उसमें आप उतना स्क्रूटनी में नहीं जाते. अब सेल है जहाँ पे दो स्ट्रेंजर्स है जो आपस में, टोकन आपने लिया, आप रिसीट आप दे दीजिए, उस पर टर्म्स लिख दीजिए कि अगर लेट्स से जो एटीएस में अल्टीमेटली आप लिख लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक रिसीट लीजिए या दीजिए अगले इंसान को कि मैंने जी आपसे 10 रुपये लिया हुआ है, एंड फर्दर इसके अगर सारी चीज़ें फॉल इन प्लेस यू विल पे मी द रेस्ट ऑफ द अमाउंट विच अल्टीमेटली यू विल गिव टू द अल्टीमेट सेलर, and that's how the transaction will be complete, followed by a registered sale deed. Now ATS कहाँ पे, how does it play a very crucial role? Now ATS जहाँ पे भी ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना अल्टीमेटली जो कश्मीर में हो रही है, वो इस पे है कि आप ATS को पहली चीज तो आप ओनरशिप ना समझे. ATS इज बेसिकली जहाँ पे दोनों पार्टीज अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना जो कॉन्ट्रैक्चुअल उनकी जो परफॉर्मेंसेज है, जो एक्सपेक्टेड है एक दूसरे से, वो उस पर आप आउटलाइन करते हो प्रॉपरली. फॉर एग्जाम्पल, जो ओनर है, जो सेलर है, वो उसमें एक टाइटल एक क्लॉज होता है जिसमें वो वारंटी देता है, टाइटल वारंटी के नाम से उसको बोलते हैं. उसमें वो बताता है कि जो प्रॉपर्टी मैं बेच रहा हूँ इट हैज़ ए क्लियर टाइटल, इट इज़ मार्केटेबल, एंड ये तक भी बोलता है उसमें कल को अगर इसमें कोई भी डिफेक्ट निकलता है तो मैं इसमें जी लायबल हूँ. अब अगर वो एक्सप्लिसिटली बोल रहा है उस चीज़ में, आपके पास एक सेफगार्ड आया है नहीं आया. Right. फिर उसके बाद जो दूसरा क्लॉज है, ऑब्वियसली पेमेंट का स्केड्यूल कैसा रहेगा, किन किन स्टेजेस पे मैं पैसा दूंगा, Right. किस पॉइंट पे पोजेशन से ओनरशिप कन्वर्ट होगी, Right. क्या एटीएस के पॉइंट पे पोजेशन में ट्रांसफर होगी, या जब मैं पूरा पैसा दूंगा एज ए बायर तब मुझे पोजेशन और ओनरशिप दोनों मिलेगी. ओनरशिप तो सेल डीड के बाद ही मिलने वाली है. कभी कभी ऐसा होता है आप
पोजेशन पहले ले लेते हो, Right. बट इट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड Right. इन दैट एटीएस इटसेल्फ। Right. फिर उसके बाद इंडेमनिफिकेशन क्लॉज है कि अगर मेरा टाइटल सही नहीं निकला कल को, अगर जो मैंने आगे प्रपोज किया है सेल करने को, इट इज एन अग्रीमेंट टू सेल, हाँ जी मैं बेचूंगा Right. आपको, इन टर्म्स पे बेचूंगा, एंड अगले को भी बोलता है कि हाँ जी ये टर्म्स अगर फुलफिल नहीं हुई मेरी तरफ से, देन आई विल बी लायबल, आप ये चीजें कर सकते हो मेरे पास। जब ये सारी चीजें डिफाइंड होंगी, सारा कुछ लिखा, आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म लिखा होगा, आर्बिट्रेशन जाएगा, लिटिगेशन जाएगा, क्या क्या एक्सपेक्टेड है एक दूसरे की पार्टीज से, तो जब ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होगी, ऑब्वियसली आप अपनी रिस्क जो है ना वो मिनिमाइज कर रहे हैं Right. एज अ बायर, एंड सेलर भी जो है वो आप उसे थोड़ा टाइट करके रखते हैं कि ओके इफ यू डोंट नीड या कहीं पे ब्रीच आप करते हो, मैं जी कोर्ट जा सकता हूँ। Right. उसमें भी आप लिखते हो कि जो टोकन अमाउंट मैंने दिया है ये स्पेशल, ये प्लीज टेक नोट ऑफ इट, यू कैन मेंशन दैट कल को अगर ये एक ऐसा स्टेज है जहां पे अल्टीमेटली आप ड्यू डिलिजेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें आप जा सकते हो। इसमें क्लियरली आप लिख सकते हो कि अगर ड्यू डिलिजेंस जो है वो रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, तो जो टोकन अमाउंट है वो भी आप मुझे वापस दोगे, एंड उसी के साथ जो अग्रीमेंट है ये भी खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड फर्दर मेरे पे एज ए बायर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं प्रॉपर्टी खरीदूं। Right. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वहां पे बन जाता है कि ड्यू डिलिजेंस के बेसिस पे ही हम आगे बढ़ेंगे या तो नहीं बढ़ेंगे, एंड जो टोकन दिया हुआ है वो आप मुझे वापस दोगे, एंड सेलर भी बोलता है कि हाँ जी मैं जी आपको वापस दूंगा अगर ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट क्लियर नहीं आएगी, एंड उसी के साथ जो मसला है जो कल कोर्ट्स में 10 साल चलता है वो आप पहले ही कवर कर लेते हो सारी चीजें। यहाँ पे आप सारा कुछ आउटलाइन करते हो। जब ये हो जाता है, वन मोर थिंग, रजिस्ट्रेशन क्लॉज। यूजुअली क्या होता है, आप एटीएस करते हो, फिर फाइनल स्टेज पे जो सेलर है या बायर है दोनों बोलते हैं, मेजरली सेलर, की भाई स्टैम्प ड्यूटी कौन पे करेगा, Right. या रजिस्ट्रेशन में नहीं जाना, अब तो प्रॉपर्टी आपकी ही है, वो है ये है वगैरह, सेल डीड बनाते हैं लेकिन रजिस्टर नहीं करते टू अवॉइड मे बी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह वगैरह, वो ये सब Taxes and all. उस चीज में ना जाएं आप। अगेन वही बात आती है, करोड़ों की प्रॉपर्टी और कुछ लाख के लिए बस आप अपनी लीगल जो प्रोटेक्शन है बेसिकली वो लूज कर देते हो। तो वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे आप कर दीजिए, म्यूटेशन उसके बेसिस पे होगी, आपकी जवाबबंदी उसके बेसिस पे अपडेट होगी, एक प्रॉपर एक चेन बनेगी, आप एक प्रॉपर उस चीज़ के ओनर हो। कल को कोर्ट में भी अगर जाता है, नो बडी कैन से कि हाँ जी कोई भी इसमें कोई टेंशन है, कोई क्लेम है, या कहीं से कोई पैनिक ऐसा या वैसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकती। सो यू हैव टू मेंशन कि रजिस्ट्रेशन जो होगी वो टाइमली होगी, एटीएस के बाद या टोकन अमाउंट पे करने के बाद, लेट्स से 1 महीने के बाद होगी, 2 महीने के, वो उसका बाद टाइमलाइन आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। सो नाउ व्हाइल टॉकिंग टू यू, डोंट यू थिंक दैट दिस एटीएस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड विच कैन अवॉइड years of litigation, emotional distress, and lots of money that is ultimately on hold or maybe at stake. I So agree. this is a stage where you decide everything, followed by a sale deed. Right. Once sale deed is done, everything is So fine. when I say agreement to sell are registered, right? It's not You right. can register this document also. Mm-hmm. You can. Okay. Hmm. Let's say I have seen outside the Kashmir, there are people who sell on ATS only. They make a resale. Let's say they bought a property, they got into an agreement to sell with a seller, wherein they, let's say 2 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है, मैंने आपसे ले ली, आपके जॉट डाउन कर लिया, उसमें मैंने किया कि 50% पे जनाब आप मुझे पोजीशन दे रहे हो, आफ्टर जियो टैग, आफ्टर इंतखाब, ऑल दीज थिंग्स के बाद आपको एक पोजीशन मिलती है 50% के बाद, एंड आई मेक श्योर दैट आई सेल थ्रू ATS. Can it be done in I Kashmir? think I mentioned it in the inception itself that these were documents जो एक practice, एक कल्चरल एक प्रैक्टिस बोलिए आप, या जो इनफॉर्मल तरीके से जो हम यहाँ पे चीज़ें करते थे अभी तक, ऐसी चीज़ें हो रही थी, या कोई एरिया जो था वो रेगुलराइज था ही नहीं, तो वहाँ पे ऐसे इनफॉर्मली चीज़ें हो रही थी। बट सुप्रीम कोर्ट वेरी क्लियरली हैज मेंशन्ड दैट ऑल ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स और दीज अग्रीमेंट्स, दे डोंट कन्फर और दे डोंट क्रिएट ए लीगल ओनरशिप एज सच। Okay. ATS, लाइक आई सेड, ये सिर्फ आपको एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट देता है Okay. जो आप इन्वोक कर सकते हो अंडर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट। कल को आप कोर्ट आप जाते हो कि ओके सर, आई वांट दिस सेलर टू परफॉर्म दिस थिंग दैट ही हैज प्रॉमिस्ड इन द ATS। बट सेल डीड जो है जिससे ओनरशिप क्रिएट होती है, तो वो एंटर करना बहुत जरूरी है। Perfect. So, my question, another question which was written here, it was, why is properly drafted agreement more important than a sale deed itself? I think you have already answered Like I this told you. particular question. So I will head to another segment. That's my last segment before closing. It will be all about the future of real estate law in Kashmir. So we are talking about the future. अब कैसा रहेगा? So my question goes like, where do you see Kashmir heading legally in next 3 to 5 years?
provided if all the things remain अगर सारी चीज़ें aligned रहती है, सारी चीज़ें as expected रहती हैं, because we face challenges on a daily basis, we face challenges yearly. आज के challenges जो है वो कल नहीं होते, कल कुछ और होते हैं. So it is a very dynamic place. So provided everything remains as expected, or not as expected but remains a conducive environment basically अगर रहता है, तो आई बिलीव कश्मीर इज अ प्लेस जहाँ पे आई यूज टू थिंक कि रियल एस्टेट कहाँ से आ सकता है. यहाँ पे इट इज सिंस इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, आप मेडिकल टूरिज्म के नाम से इसको सेल कर सकते हो उस जगह को. यहाँ पे आर्बिट्रेशन सेंटर्स बन सकते हैं जहाँ दुनिया भर से लोग आ सकते हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, पीपल लाइक टू कम हियर, स्पेंड वीक्स, सो दैट केस भी चल रहा है, आपका इलाज भी हो रहा है, वो भी चल रहा है. होटल्स तो खैर है ही यहाँ पे, जो हर दिन एक नया होटल बन रहा है. इंटरनेशनल चेन से जो यहाँ पे आ रही है, मैं कुछ चीज़ों में खुद इन्वॉल्व था. Right. तो ओवरऑल लाइक आई टोल्ड यू, नीड भी है. 3 लाख से ज़्यादा यूनिट्स की ज़रूरत पड़ सकती है अगले कुछ, पॉपुलेशन बढ़ती ही रह रही है. अर्बन एरियाज ऑलमोस्ट सैचुरेट हो गए, कहाँ को जाओगे आप. सो देयर इज़ अ नीड है, स्कोप भी है. एंड क्यों नहीं, व्हाई नॉट, जब इतना खूबसूरत जगह है, एवरीबडी वुड वांट टू बी हियर. अल्टीमेटली वन मोर फैक्टर कि जो फैमिली सेटअप्स है वो चेंज हो रहे हैं. अब न्यूक्लियर की तरफ हम सेटअप्स की तरफ जा रहे हैं. Right. माइग्रेशंस हो रही है फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, मे बी फॉर वर्क. बहुत सारी चीज़ें होती है बाहर से भी, काफ़ी सारे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ बिजनेसेस हैं, कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे लोग बाहर से भी यहाँ पे काम कर रहे हैं. वो कहाँ पे रहेंगे? Right. जो एक वाइट कॉलर्ड लोग भी यहाँ पे आते हैं एक- काम करने, तो उनके लिए भी जगह चाहिए. एंड देयर आर पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट आल्सो फ्रॉम आउटसाइड और मे बी लोकली, Good. जो भी है. तो अल्टीमेटली आई बिलीव दिस इज वन मार्केट जो किसी भी जगह पे, स्पेशली इन ए प्लेस लाइक कश्मीर, इट इज 100% एक अप गोइंग एक मार्केट है जो जाना चाहिए, प्रोवाइडेड आई बिलीव अगर एक कंडूसिव एनवायरनमेंट अगर मिले. एंड सेकेंडली, अगर ट्रस्ट डेफिसिट की जगह पे ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हम कर पाए, कॉन्फिडेंस क्रिएट कर पाए, आई थिंक इट कैन रीच द स्काई. Wow. That's how we are working together, because I think we both are looking Kashmir as an opportunity. We are seeing it, eyeing it as a big industry in terms of real estate in the future, next 3 to 5 years. That's where we are planning. क्योंकि अभी सफेद बाल नहीं हो, अभी हम छोटे हैं. We are just making a legacy. We're trying to, mashallah, yes, I agree, but we are still young. If we talk about real estate, if we talk about this particular industry, if we see outside, because the nation or the GDP totally varies on real estate, and this has been a big sector. And inshallah, if we see that the trust is coming back, the investors are coming back, there is a flow of buying and selling happening in the market, the demand is there, which is already there. The supply should be there now, because we are looking for new professionals, we are looking for right set of people, or the builders who will make it. Because I am a real estate guy, I can sell it, but I need the property to sell it. I will tell you an example. Recently I had a buyer who closed within a 1 day. And in this market, when I tell this to the people, but what I did is, he came from outside, he was looking for a 7 or 8 mother of a land and a nice boutique house, which he wanted. And when I see in the market, I just have a question before this. Can you buy your father's house? Will you buy? Can I buy my father's Will you house? buy? I'm not required to buy the house, because वो वैसे भी मैं inherit करने ही वाला हूँ, Mm-hmm. तो मुझे खरीदने की ऐसे जरूरत है नहीं. If I tell you you have to move out, you're two brothers, okay? Now you have to move out from that particular house and you're looking for a house. What type of house will you look? Like the same what your father has made? No, obviously, things are changing. Things are changing. एक बड़ा घर जो हमारा यहाँ पे normally हम plot based ही चीज़ें खरीदते हैं यहाँ पे, हमें मज़ा आता है उस चीज़ में. एक बड़ा गार्डन हो, एक घर हो, स्पेशियस हो, वो ये सब चीज़ें. बट स्लोली आई बिलीव ये सारी चीज़ें मैनेज करना भी एक कम्बरसम एक टास्क बनता है. एंड जितना जितना लैंड आपका कम होगा, बिकॉज अर्बनाइजेशन हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, सो अल्टीमेटली जो फ्लैट सिस्टम है, एक गेटेड सोसाइटी सिस्टम है, आई थिंक दैट इज़ वन एरिया जो अनटैप्ड है अभी. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है ही नहीं. हैंडफुल ऑफ पीपल हु हैव इंडल्ज्ड इन दिस सेक्टर. तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो अनटैप्ड है, बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है, एंड इसकी ट्रमेंडस रिक्वायरमेंट है. एंड आई हैव सीन पीपल हु हैव एन हाउस बट दे ऑल्सो वांट अ फ्लैट, Right. because they have a big family. One of the brothers or one of the sisters, she wants to move out, and वहाँ से वो अपना जो है डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो वहाँ से होती है कि वलसर 8 फ्लैट तक वो ये वगैरह. सो इट बिकम्स ईजियर फॉर देम ऑल्सो, बिकॉज व्हेन देयर आर मोर स्टेक होल्डर्स,
एक को फ्लैट दे दो, वो भी कोई सस्ता तो होता है नहीं, वो भी करोड़ों में ही है। तो अल्टीमेटली आई बिलीव फ्लैट सिस्टम्स, रेजिडेंशियल जो गेटेड सोसाइटीज है, ये एक अनटैप्ड मार्केट है, एंड आई थिंक people like you should start propagating about all of these things, because this is जो next gen है, जो ultimately need of the hour है, वो यही ही चीजें चाहे हम कितना भी डिनाई करें. Okay. So before closing it, I will have a question for you, because I came to Kashmir because, as I said, I want to generate the best employment for the people, because real estate will make you a lot of fortunes. People have made into this. And I want to show this particular sector or this industry to the people of Kashmir, Kashmir and Khadra, that there's a lot of money involved in this. But if you do it in a proper way, if you do it in a proper firm, and you follow the proper professionalism, then you can make a lot of money out of it. And with that, the GDP will go up. With that, the employment will go up. So when I say if you'll get a 10% of a share, जो market में buy sell हो रहा है, you will get a 10% of the share, and people will start using a lawyer, or they will get the lawyer involved into a deal. How many people can you provide the jobs, or the lawyers, which are now the future lawyers, which are coming? Because I see a lot of new generation lawyers are really much loving you, because you are developing that type of a stereotype. You're getting out of that and you're making something for them, a law firm. क्योंकि ये सूट्स की तरह है, मैंने एक सूट्स एक सीरियल देखा था, वहाँ पे पार्टनर्स होते हैं, एंड विद दैट पार्टनर्स it's a big thing. It has come from US, right? And the same thing I see in you and in your firm, basically. So you give that a basic knowledge about law. You tell them and you make sure that they have a proper client and account base that जिनसे वो काम करते हैं, and that's how they grow, right? Because lawyers के लिए मैंने देखा, I recently got interviewed to a telecaller. She was a lawyer. She has done masters like LLB, LLM. She has an LLB, and she has done LLB, LLM in 2017. And from then till now, she was working for a US firm at a back end, and she was doing some case, कुछ होता वहाँ पे उनका, and वही कर रही थी. And when she came for the interview, I asked her, "Ma'am, you are from a law background. Why don't you work? Like, क्यों नहीं करते हो?" Well, भाई law पढ़ा है आपने, वो भी criminal law पढ़ा है, माशाल्लाह. मतलब you have मतलब आपने पढ़ पढ़ के उसमें दिमाग ये किया है, ये आपने पैशन से किया था, या ये घर वाले ने बोला लॉयर बनना है? बोला नहीं, पैशन से किया था. मैं नाउ वेयर इज द पैशन? बोला सर मसला ये है, आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन मेक और क्रिएट जॉब्स, बट देयर आर नो जॉब्स फॉर मी एज वेल, एज आई एम अ लॉयर. सो आई सेड ओके ठीक है, यहाँ पे एक आई एम अ लॉ ऑफिस है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है. शी वॉज वेरी अमेज. सर ऐसा भी कुछ कश्मीर में है जहाँ पे मतलब वहाँ पे आपको वैल्यू मिल सकता है एज अ लॉयर? जो आपने पढ़ा है वो, अगर चलो क्रिमिनल लॉ पढ़ा है, फॉर यू रियल एस्टेट यू कैन चेंज, राइट? आई थिंक अगर आपने क्रिमिनल लॉ से टू गेट इनटू रियल एस्टेट, इट विल नॉट टेक हर मोर देन 6 months टू ट्रेन ऑन टू द प्रॉपर लॉ थिंग. But again, how many jobs can be done through you if you get 10% of the share of the market? 100%. And it can't be done without, see, westernization is something else, and modernization is something else. We need modernization. I believe I belong to a service based, I'm a service provider at the end of the day. And people should, feel comfortable when they come to me. They shouldn't, ultimately, उनके बीच में कोई filter नहीं होना चाहिए before sharing their issues with me, or whatever, business issues they are facing, or any hurdle जहाँ पे भी वो फंसे हुए हैं. So as a provider, service provider, मेरा modernization का मतलब ये है कि जो एक filter है, because we are lawyers are seen as white collared, professionals, जो बहुत कुछ जानते हैं, knowledge होती है उनके पास. And usually people get intimidated by them also, because they know how to maneuver around things. तो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि वो गैप ना रहे मेरे में, और जो सर्विस सीकर है बेसिकली, जिसे सर्विस चाहिए, वो कंफर्टेबल रहे, उसे बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिले एट जो भी इंडस्ट्री मार्केट के जो भी स्टैंडर्ड्स है फीस के, उसे कम ही दे दे. हाफ ऑफ द वर्क दैट आई डू, बिलीव मी, मैं पैसा लेता ही नहीं, बिकॉज आई बिलीव कि लोग पहले समझे चीज़ें. कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोगों को पता नहीं है, या यहाँ के वकील जो है बहुत ही वर्ल्ड क्लास है यहाँ पे ऑलरेडी. बट माई पॉइंट इज़ कि मेरी नज़र में, मेरा जो हल्का सा विजन है, आई बिलीव देर आर सर्टन गैप्स, स्पेशली डिस्प्यूट से पहले जो होता है. एक लंबी जर्नी होती है डिस्प्यूट अराइज होने से पहले. डिस्प्यूट एक लास्ट स्टेज है जहाँ पे डिस्प्यूट हो गया, आप कोर्ट चले गए, वहाँ पे हज़ारों वकील हैं आपके पास, बेस्ट से बेस्ट आपको मिल जाएंगे. बट उससे पहले की जो जर्नी है, वो कौन देख रहा है यहाँ पे, वो कौन गाइडेंस आपको दे रहा है, या कौन आपको, आपके बिजनेसेस क्यों फ्लरिश उस लेवल पे नहीं हो रहे हैं, या हो रहे हैं. What I'm trying to tell you, there are newcomers who want to expand, who want to, diversify, who want to get into various, AI, for example.
So now, who will tell them about the regulations? Who will tell them about the compliances? Who will tell them how to, basically do it legally? Or the issues that they are facing on a daily basis? Or you, for example, are going in real estate. How can you make it a profitable business for you? Or how can you attract more and more people legally? जहाँ पे मैं inputs अपने दे सकता हूँ. We want CAs because you don't understand figures. बट लीगैलिटीज भी वैसी ही चीज एक है जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते नॉर्मली. आप लीगैलिटी रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ए कॉमा मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस एट टाइम्स. सो ओनली अ लॉयर कैन अंडरस्टैंड इट. एंड आई बिलीव विद आने वाले टाइम में आई थिंक कॉर्पोरेट लॉयर्स स्पेशली लीगल एडवाइस जो बेसिकली बहुत ज़रूरी है बिजनेसेस के लिए. एंड आई होप अ लॉट ऑफ मोर बडिंग लॉयर्स गेट इनटू दिस सेक्टर ऑफ law ultimately. When they see ultimately people like you flourishing in Kashmir with some help given to you by, backed up by people like me, so they will kind of, understand कि legal advice कहीं पे छोटी मोटी भी कभी कभी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रह सकती है. Right. So again, my question was not on how many people we are talking about. If we get a 10% of the share of the market, I'm sorry, I didn't get you. how many people you can employ in your particular office? If you have a 10% of a share, where in Kashmir, people will use the legal advisors for, let's say, real estate, because IMR law office is not only into real estate, you're into different sectors of the business as well. So how many people can you accommodate? Like, can you employ? And how many people can get benefited out of it? See, like I told you, when there's a full service law firm, when you're dealing in multiple, domains of law, civil law, criminal law, arbitration, corporate law, regulatory, compliances, lots of other things. So obviously that would need manpower, that would need resources. So obviously if we're talking about अगर जो मैं सोच रहा हूँ जैसा मेरा विजन है या जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ यहाँ पे कौन कौन से है जो अनटैप्ड एरियाज है as far as law is concerned, corporate law is concerned, I believe hundreds of youth, hundreds of budding lawyers can find a direction and ultimately source of livelihood if things fall in place. If things fall in place the way I have, envisioned, probably. Okay, so if you could give, I'm closing this topic now. If you could give me a last one advice to somebody who is buying for the first time in Kashmir and what he should do at the first point before thinking what to buy. Emotions को control में रखो. Because fear of missing out और इमोशनल वाह, बिकॉज एवरी प्लेस इन कश्मीर इज ब्यूटीफुल. आप कहीं पे भी ले लो, कुछ अब ज़्यादा खास होती है. एंड जो ये आपके सेलर्स होते हैं या जो एजेंट्स लाइक यू, वो आप बड़े आपके ना बड़े इम्पल्सिव डिसीजंस करवा देते हैं कभी कभी. वो इतना आपको मोटिवेट कर लेते हैं दैट यू गेट almost dragged into that transaction. So calm down, relax, make an informed decision, understand the legalities, understand जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया, जितनी भी chain of documents है, जो documentation, check everything and then go for it. And I believe emotions को control में रखें. That is one thing that I want to probably tell people. Wow. Thank you, Roman, for all the knowledge that you have given to us for free, because I have been from a corporate culture. I know the lawyer charge like 50,000 an hour, and you have come to us and you have been here for at least 2 hours, and you have given a lot of knowledge about real estate for the people for free, as in to aware people, because everybody as a business owner cannot lose their time. But you and me are staying here trying to give it to the people and trying to make sure that people get a right idea how they can get into real estate, because we are looking to change the way how Kashmir real estate used to work. We are changing the full demographics of this. And I have been very amazed and very knowledgeable today with all the things, because we said a lot of time and discussed deals, but today it was a thorough discussion, and I understand how a person or a common person who is saying this today will get an idea about this. So if they have to reach you out, how they can reach you out? See, at the end of the day, I, as a lawyer, I cannot solicit or maybe advertise, but but you can reach me if you want to reach me. There are ways, and I'm sure जिसको आना होगा वो पहुंच ही जाएगा. Okay, so before closing, I will just want you to tell people in one word what Kashmiri Realtor and IMR law offices are together making. Trust, basically. I believe, especially when it comes to you,
what you're ultimately selling something into the market, and I just make sure that whatever you're selling is backed up by with law, with sound legal backing, and that is the idea, to create a confidence and investor confidence and trust basically. So, Roman bhai, if I will ask you, I get a lot of inquiries from expats, or let's say the people who are staying abroad and are Kashmiris. So, can they buy, and how will they buy if they want to buy anything here in Kashmir in terms of real estate? See, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा, it is not a rocket science. There are ways through which it can be done. Obviously, सब चीज़ें बताऊंगा तो पैसे किस चीज़ के कमाऊंगा, but then there are ways, and there are simple ways through which it can be done. And an NRI or a person of Indian origin, yes, they can buy residential properties. There are certain restrictions, but then residential properties, commercial भी वो खरीद सकते हैं यहाँ पे proper legal means के through, proper channels के through. So, when I say OCIs, they are not able to, they are bound to buy the agricultural land here, right? Because that's how I have understood it. I believe there are restrictions on buying agricultural land, but rest of the types of land they can get into. Okay, so can you give me an example of, just in a quick moment, how many types of lands are there? Just an idea. See, there are various types of land. When we talk about, as far as the master plan is concerned, there are designated areas. कुछ areas होते हैं जो industrial purposes के लिए हैं. If you're asking that, कुछ areas है जो commercial उनको zoning उसमें आते हैं वो. कुछ है जो residential areas है. कुछ है mixed use के लिए है. कुछ agricultural है. कुछ बाकी सारी buffer zones में आते हैं. तो properly designated areas है. एंड ये एरियाज आपने देखने हैं कि आपका लैंड जो अल्टीमेटली है वो किस चीज़ में फॉल करता है. अब अगर आप स्पेसिफिकली लेट्स से एग्रीकल्चरल लैंड की बात करते हैं, देयर आर टेंस एंड लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड. वहाँ मैदानी लैंड है, इरिगेटेड लैंड है, नॉन इरिगेटेड लैंड है, बंजर कदीम होता है, घास चराई होता है, एंड मल्टीपल अदर, बाग होता है, ऑर्चर्ड लैंड जिसे बोलते हैं, मल्टीपल अदर टाइप्स ऑफ लैंड ऑल्सो. सी अगेन, जब आप ड्यू डिलिजेंस करते हो, आप जाते हो रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट्स को स्टडी करने, यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि ये किस चीज़ में, किस कैटेगरी में, एंड देन फिर किस सब कैटेगरी में फॉल करता है, एंड क्या इसका CLU हो सकता है या नहीं हो सकता है. क्योंकि अल्टीमेटली एग्रीकल्चरल लैंड पे आप रेजिडेंशियल कैसे बनाओगे, तो आपको प्रॉपरली देखना पड़ता है. आपने लैंड रेवेन्यू एक्ट देखनी है, आपको जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्ट्स हैं यहाँ पे वो देखनी है, आपको अल्टीमेटली देखना है क्या रेगुलेशंस है विद रिगार्ड टू द चेंज ऑफ लैंड यूज, CLU जिसे बोलते हैं, मास्टर प्लान क्या बता रहा है, जोनिंग रेगुलेशंस क्या बताती है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टेपिंग इनटू समथिंग. I understand. So, thank you, Roman bhai, for all the knowledge that you have given us today. It was a thorough discussion about real estate and the demographics or the legal challenge we have in it. I hope that we were discussing that we will maybe make a chain of series out of this law, where we can include RERA, we can discuss a lot of things in detail. But for that, we need to see how our audience will respond to it. And for that, I will just take a note from here. I will just say this episode was brought to you by Kashmir Realtor with the help of the team of Mia Infotech, which is a new social media. They are doing tremendously awesome with their setups, with their new generation people. Eventually, it's also creating a lot of jobs here in Kashmir. And I will just say one thing: stay protected when you are making any real estate deal. Assalamu alaikum.